غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ، اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھیوڈومیر میدان جنگ سے لاپتہ ہو گیا۔ قلعے کا جو دروازہ کھلا تھا بند ہو گیا۔ اندلسی فوج کے پرچم کبھی کے گر چکے تھے۔ مسلمان ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی، لیکن زید بن قصادہ کا حکم تھا کہ کسی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ گرناطہ وہاں سے کچھ دور تھا۔ عیسائی فوج کا صفایا کر کے سالار زید نے گرناطہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اسی نے اسی فوج کو یہ مرثا سنا دیا تھا کہ اللہ نے انہیں فتح سے نوازا ہے اور اب قلعے میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کرنا ہے، اور یہ بھی کہ شہر میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب انہیں قلعہ نظر آنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دیوار پر انسانوں کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ محاصرے کے وقت ہر قلعے پر سپاہی موجود تھے، لیکن اتنے نہیں کہ ان کے کندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ ان کے سروں پر جنگی ہودیں تھیں اور ان کے جسموں کے بالائی حصے زرہ پوش تھے۔ نہیں، ابھی نہیں، سالار زید نے اپنے نائب سالار سے کہا، ہم تو سمجھے تھے کہ گرناطہ کی فوج کو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن شہر کے دفاع میں تو اس سے کہیں زیادہ فوج نظر آ رہی ہے۔ مرکوزہ بالا مورخ لکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے لیے افق کے قریب پہنچ گیا تھا۔ زید بن قصادہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اب اس کی فوج اور کم ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ مجاہدین شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے تھے۔ کیفیت مایوسی والی ہو گئی تھی۔ پھر بھی دیوار کے قریب جا کر سالار زید نے اعلان کروایا کہ اپنی فوج کا انجام دیکھ لو۔ اگر بغیر لڑے شہر کے دروازے کھول دو گے تو امن و امان میں رہو گے، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ عموماً یوں ہوا کرتا تھا کہ محاصرہ کرنے والے ایسے ہی غلط باتیں کرتے تھے اور محصورین کی طرف سے تنزیہ اور دھمکی آمیز جواب ملا کرتا تھا، لیکن زید بن قصادہ کے اعلان کے جواب میں دیوار سے کوئی اور آواز آتی تھی۔ خلاف توقع دروازہ کھلا اور تھیوڈومیر ہاتھ میں سفید جھنڈا لیے باہر آیا۔ پہلی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تھیوڈومیر صلح کا جھنڈا اٹھائے خود باہر آیا تھا، اور زیادہ تعجب یہ دیکھ کر ہوا کہ اس کے ساتھ صرف ایک محافظ تھا۔ کوئی جرنیل یا بادشاہ محافظوں کے پورے دستے کے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتا تھا۔ تھیوڈومیر کے ساتھ جو محافظ تھا وہ قریب آنے پر پتا چلا کہ محافظ نہیں بلکہ وہ ایک نوجوان ملازم ہے۔ عیسائی بادشاہ اور بڑے جرنیل محافظوں کے علاوہ اس قسم کے ایک دو ملازم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ زید بن قصادہ تھیوڈومیر کے استقبال کے لیے ذرا آگے چلا گیا، پھر دونوں کمانڈروں کا آمنا سامنا ہوا۔ میں اپنے سے بڑے جرنیل کے حکم سے آیا ہوں، تھیوڈومیر نے کہا۔ یہ جرنیل اس علاقے کی تمام فوج کا کمانڈر ہے۔ اس نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ قلعے کے اندر اتنی زیادہ فوج ہے کہ آپ محاصرہ کریں گے تو کم از کم 1 سال محاصرے میں بیٹھے رہیں گے۔ شہر کی دیواروں پر دیکھ لیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر میں کتنی زیادہ فوج ہوگی۔ اگر اتنی زیادہ فوج موجود ہے تو پھر صلح کی کیا ضرورت ہے؟ زید بن قصادہ نے اپنے ترجمان کی معرفت تھیوڈومیر کی بات سنی اور جواب دیا، تم میری فوج کو دیکھ رہے ہو کہ پہلے سے بھی کم رہ گئی ہے۔ ہمارا جرنیل رحم دل انسان ہے۔ تھیوڈومیر نے کہا، اسے پتا چل گیا ہے کہ اس کی فوج کس بری طرح کٹ گئی ہے اور آپ کا بھی نقصان ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مزید خون ریزی اس کی برداشت سے باہر ہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صلح نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فوج ہے جس سے آپ قلعہ نہیں لے سکیں گے۔ زید بن قصادہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن تھیوڈومیر جس انداز سے بات کر رہا تھا اس سے متاثر ہو کر زید بن قصادہ صلح پر راضی ہو گیا۔ لیکن صلح کی شرائط ہماری
होंगी। थियोडोमीर ने कहा, सबसे बड़ी शर्त ये होगी कि शहरियों के जानो माल और इज्जतो आबरू की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी होगी और आपका कोई सिपाही किसी शहरी के घर में दाखिल नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि खजाने में जो कुछ भी है वो हम खुद आपके हवाले करेंगे और तीसरी शर्त यह है कि मुझे आप जंगी कैदी नहीं बनाएंगे, बल्कि मैं किले में रहूंगा और मैं आपकी तरफ से इस सूबे का गवर्नर होऊंगा। मैं आपकी अतात कबूल करता हूं और आपके अहकाम का पाबंद और आपका वफादार रहूंगा। सुलह की यह शराइत तहरीर की गई और जैद बिन कसादा ने इस दस्तावेज पर अपने दस्तखत करके अपनी मोहर भी लगा दी। अली उस सुबह आपको शहर के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे, थियोडोमीर ने कहा और चला गया। इब्ने कसादा सलार जैद के एक नाइब सलार ने उसे गुस्सीली सी आवाज में कहा, तुमने अपनी और हम सब की मौत के परवाने पर अपनी मोहर लगा दी है। हाँ इब्ने कसादा, एक और ओहदेदार ने कहा, मालूम होता है तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। जैद बिन कसादा ने कहा, तुम्हें ये खतरा नजर आ रहा है कि थियोडोमीर हमें अपने फंदे में ले जा रहा है। हम अंदर जाएंगे तो शहर की फौज और तमाम शहरी हम पर टूट पड़ेंगे और हमारा नामो निशान मिटा देंगे। हाँ, ओहदेदार ने कहा, यही होगा। तुम में अकल की कमी है। सलार जैद ने कहा, कोई किलादार दुश्मन के चंद आदमियों को भी किले में दाखिल नहीं होने देता। हमारी तो फौज है जिसके लिए वो सुबह दरवाजे खोल रहे हैं। इन्हें मालूम है और ये देख चुके हैं कि बर्बर मुसलमान कम तादाद में हो तो भी इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। रात इस तराब में गुजर रही थी। इधर उधर लाशें बिखरी हुई थीं। जख्मियों की कुरबनाक आहोजारी सुनाई दे रही थी। बर्बर उंदलस के मरे हुए फौजियों के हथियार इकट्ठे कर रहे थे, उनकी जामा तलाशी ले रहे थे। गीदड़ और बेड़िए वगैरह भी पहुंच गए थे। जैद बिन कसादा रात भर सो न सका। उसकी और बर्बरों की ये परेशानी बिल्कुल कुदरती थी कि उन्हें किसी फंदे में फांसने की तरकीब की जा रही है। जैद ने अपने ओहदेदारों से कह दिया था कि वो रात को बेदार और चौकस रहें और सुबह किले में दाखिल होते वक्त आंखें घुमा घुमा कर हर तरफ देखते रहें। रात गुजर गई। एक मुजाहिद ने अजान दी। लश्कर ने जैद बिन कसादा की इमामत में फजर की नमाज पढ़ी। सलार जैद ने एक बार अपने ओहदेदारों से कहा कि किले में दाखिल होते वक्त होशियार रहें। सुबह का उजाला सफेद हुआ ही था कि किले से एक आदमी आया और सलार जैद बिन कसादा से कहा कि जनरल थियोडोमीर आपका इंतजार कर रहा है। सलार जैद ने अपने लश्कर को उसके पीछे आने को कहा। लश्कर तैयार था। प्यादे और घोड़सवार उसके पीछे चल पड़े। तवक्को थी कि गर्नाता की शहरे पनाह पर फौज पहले की तरह खड़ी होगी, लेकिन दीवार पर एक आदमी भी न था। थियोडोमीर किले के बड़े दरवाजे से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके साथ वही एक आदमी था जो पहले भी उसके साथ देखा गया। उसने जैद बिन कसादा का इस्तकबाल अपने तरीके से किया और उसे किले के अंदर ले गया। क्या मेरी फौज भी किले में आ सकती है? सलार जैद ने पूछा। हाँ, थियोडोमीर ने कहा, क्या मैंने मुआहिदे में ये नहीं लिखवाया कि हम किला आपके हवाले कर रहे हैं? मुजाहिदीन का लश्कर जैद बिन कसादा के इशारे पर किले में दाखिल हो गया। मुजाहिदीन को जिस तरह सलार जैद ने हदायत दी थी उसके मुताबिक हर मुजाहिद चौकस और तैयार था। बर्बर हर तरफ नजरें दौड़ा रहे थे। किले में जहां तक नजर जाती थी कोई फौजी नजर नहीं आ रहा था। मकानों की छतों पर औरतें और बच्चे खड़े थे। बाहर भी औरतें, बच्चे और बूढ़े आदमी खामोश खड़े नजर आ रहे थे। इससे सलार जैद का शक और पुख्ता हो गया कि ये कोई फंदा है। आपकी फौज कहाँ है? सलार जैद ने पूछा। और किलादार कहाँ है? यहाँ कोई फौज नहीं, थियोडोमीर ने जवाब दिया। यहाँ आपको फौज का एक सिपाही भी नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ मैं हूँ, कोई किलादार नहीं। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मुझसे बड़े जर्नैल ने मुझे सुलह के लिए भेजा है। मेरा हिफाजती दस्ता भी नहीं। ये जो एक आदमी यहाँ नजर आता है ये मेरा जाती मुलाजिम है। ये वाहिद शख्स है जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आपकी इस बात पर किस तरह यकीन कर लूँ? जैद बिन कसादा ने कहा, फौज कोई इतनी छोटी सी चीज नहीं जिसे छुपाया जा सके। थियोडोमीर ने कहा, मैंने ये सारा शहर आपके हवाले कर दिया है। आपके पास फौज है, सारे शहर की तलाशी ले लें। मेरे सिवा आपको यहाँ कोई फौजी नजर नहीं आएगा। मेरी फौज आपकी फौज के हाथों कट चुकी है और कोई जिंदा बचा है तो वो भाग गया है। आप झूठ बोल रहे हैं। जैद बिन कसादा ने कहा, मैं उस फौज को देखना चाहता हूँ जिसे मैंने शहर की दीवारों पर कंधे से कंधा मिलाए खड़े देखा था। थियोडोमीर हंस पड़ा और उसने औरतों
बच्चों और बूढ़ों की तरफ अपना हाथ घुमाकर इशारा किया। ये है वो फौज जिसे आपने शहर पनाह पर खड़े देखा था। थियोडोमिर ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं इस फौज को एक बार फिर शहर पनाह पर खड़ा कर सकता हूँ। मैंने आपको धोखा देकर सुलहनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। मेरे पास कोई फौज ना रही तो मैंने भागने की बजाय ये तरीका इख्तियार किया कि औरतों, कासिन, लड़कों और बूढ़ों को फौजी कपड़े पहनाकर और इनके सरों पर हुदें रख कर इन्हें दीवार पर खड़ा कर दिया। आप समझें कि किले में बहुत ज्यादा फौज मौजूद है। ये धोखा देने की क्या जरूरत थी? जैद बिन कसादा ने पूछा, क्या आप इन औरतों और बच्चों को हमारे हाथ मरवाना चाहते थे? अगर मैं किला सर करने का इरादा कर लेता तो ये मासूम जाने हमारे तीरों से छलनी हो जाती, तो मैं बाकी उम्र अल्लाह से इस गुनाह की बख्शिश मांगते गुजार देता। आप ये ना समझ बैठे कि मैं शहर पनाह पर इतनी ज्यादा फौज को खड़े देखकर डर गया था और इस डर से सुलहनामे पर आपकी शराइत पर अपनी मोहर लगा दी। मैं ये जानता था। थियोडोमिर ने कहा, मैं आपको डरा नहीं रहा था। मेरा मकसद ये था कि आप किला ले लें और मजीद खून रेजी ना हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने आपके साथ जो मुआहिदा किया है ये उन मुआहिदों जैसा नहीं होगा जो फौजों के दरमियान होते ही रहते हैं। मैं सच्चे दिल से आपकी अताअत कबूल कर चुका हूँ। मैं अपनी कोई फौज नहीं बनाऊंगा बल्कि मैं आपका मातहत रहूंगा। मोरहो ने ये वाकया बयान करके लिखा है कि जैद बिन कसादा थियोडोमिर की दानिशमंदी से इतना मुतासर हुआ कि उसने अपने सलार तारक बिन ज़ियाद से पूछे बगैर थियोडोमिर को इस सूबे का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, लेकिन उसे एक अरब हाकम के मातहत रखा। करनाता की आबादी में यहूदियों की अक्सरियत थी। चूँकि यहूदी उंदलस के बादशाह राडरक से तंग आए हुए थे, इसलिए वो मुसलमानों के वफादार हो गए। करनाता में शहरी इंतजामात और अमूर को चलाने के लिए सलार जैद ने मुसलमानों के साथ यहूदी और ईसाई भी मुकर्रर किए। मुसलमानों की ये कमजोरी थी कि उनके पास ऐसे आदमियों की कमी थी जो अमूर सल्तनत चलाने के अहल होते। इस कमी को ईसाइयों और यहूदियों से पूरा किया गया। आगे चलकर ये यहूदी और ईसाई बगावतों का बाइस बने और उन्होंने सल्तनत इस्लामिया को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी।